In this class, we will try to find some conservation laws which are naturally the consequences of Newton's laws of motion. न्यूटन 3 लॉज दिए, तीनों लॉज इंटरकनेक्टेड है, कॉन्सिक्वेंसेज है वो एक दूसरे के. सेकेंड लॉ which is related to the rate of change of momentum is equal to total force. Newton's second law will provide you certain conservation laws, or you can say the three laws will provide you the certain conservation laws. What is the conservation? What is the meaning of conservation laws? Conservation laws simply means we will talk about those properties which will remain conserved during the motion. We will talk about the properties which have the nature of constanteousness. Constant रहेंगे वो, conserve रहेंगे during the motion. उन properties से बनते हैं conservation laws. There are three conservation laws: conservation of momentum, conservation of linear momentum, and conservation of energy, which you will study. And naturally, we will study these conservation laws for one particle and for a system of particles. Till date, you have studied the conservation laws. You have already studied those conservation laws in physics as well as in mathematics, but those were for single particle. So initially we will derive them for the single particle, and then gradually we will develop them for the system of particles. So basically the advantage of these conservation laws is that these are helpful in providing the behavior of the motion, the behavior of the object, and basically these conservation laws do not need the prior information of forces. So you can say that these are independent of forces. ये ठीक है कि हम उसमें एक फोर्स की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स की बात करेंगे, लेकिन कंजर्वेशन लॉज एज सच फोर्सेस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते. जब कंजर्वेशन लॉज को हमें फाइनल डेरिवेशन पर लाना होता है, यानी कि फाइनल स्टेटमेंट पर लाना होता है, तभी हम फोर्स की बात करते हैं. और यदि फोर्सेस पता है, यदि आपको किसी सिचुएशन में फोर्सेस की पहले से जानकारी है, तो द बेनिफिट इज दैट कंजर्वेशन लॉज प्रोवाइड यू अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, अ परफेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन. तो ये कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई. मैंने हालांकि पिछली बार आपको थोड़ा बता दिया था इसके बारे में, और हमने लीनियर मोमेंटम की बातें भी कर ली थी. But still today I would like to revise that linear momentum, or you can say the concept of momentum regarding the linearity and regarding the angularity. What is linear momentum and how we predict the angular momentum? I told you earlier that if momentum is conserved, suppose we are talking about the two types of balls which are in motion, and we say that the momentum is conserved regarding the two balls. I told you and I mentioned the example of a bowling ball as well as a baseball. You know that the bowling ball is very heavy and the baseball is very light. So the mass of the two balls is very different. Still, if I am saying that during the motion the momentum is conserved for the both balls, that simply means momentum is defined as mass into velocity. So if your mass, if conservation momentum is conserved, then regarding the bowling ball, suppose momentum is m1, then naturally it will depend upon mass as well as on velocity. And if I am talking about the motion of baseball, then let the momentum be m2. And if I am saying that m1 is equal to m2, so when is it possible? It is possible because we know the mass and we have to keep the momentum conserved. तो कब possible है ये? इसका mass है m1, इसका mass है m2, both have to be multiplied by velocity,
Mass m1 is heavy and mass m2 is light. So naturally, there will be a relation between the velocities that v1 should be less than v2 to the amount that product m1 v1 is equal to m2 v2. Here we मैम are स्लाइड नहीं दिख रही. स्लाइड नहीं, किस किस को नहीं दिख रही पहले बताओ. मैम मुझे भी नहीं दिख रही है. मैम दिख नहीं रही है. मैम नहीं दिख रही. हाँ मुझे भी नहीं दिख मैम नहीं दिख रही. रही. Just a minute, just a minute. एक सेकेंड होल्ड करना. लेकिन मेरे हिसाब से तो दिख रही है. मैम अब नहीं दिख बताओ, रही. अब बताओ, अब दिख रही है? Yes, ma'am. एक ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank Yes, God. मैम. अब दिख रही है. ओके बेटा, Yes. ओके बेटा. Yes, ma'am. So I will restart. No problem. I have said you that momentum is equal to mass into velocity. Okay. Now there is a bowling ball which is having the mass of bowling ball is m1. Mass of baseball is m2. Okay. Naturally, m1 is greater than m2. But if I am saying that the momentum of bowling ball is equal to momentum of baseball, then what is the necessary condition? That m1 v1 will be equal to m2 v2 only if v1 is less than v2. So there will be a compromise on the velocity. The bowling ball will move with a lesser velocity than the velocity of the baseball. Only then it may be possible that momentums are conserved. Actually, I will let you know that what are the conditions when the momentum is conserved without talking about the velocity or without talking about the masses. अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल बता रही हूँ जिसमें हम ये कह रहे हैं कि मोमेंटम कंजर्व है. ऐसा हम कैसे कहेंगे? तो मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मोमेंटम अगर एक बॉल है, एक दूसरी बॉल से टकराती है, एक ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है, तो कैसे करके मोमेंटम को हम कंजर्व कर दिखाते हैं कि मोमेंटम कंजर्व है. एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कोलाइड करता है तो आफ्टर कोलिजन आइदर दे मीट और दे रिपेल. मीट सिंपली मीन्स दैट दे विल मूव इन द सेम डायरेक्शन एंड रिपेल मीन्स दे विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो जो कैरेक्टरिस्टिक है मोमेंटम की, मैंने आपको बताया था मोमेंटम क्या है. मोमेंटम इज द पावर. मोमेंटम इज अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट or a power of an object which it will exert on another object when it comes into its connection of the second particle. तो अगर वो उससे टकराएगा किसी पार्टिकल से तो अपनी कितनी पावर दिखा सकता है उसके ऊपर. दिस इज एक्चुअली द मोमेंटम इन अ रफ लैंग्वेज. सो मैंने आपको ये बताया था कि सपोज ये एक बॉल है, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि मोमेंटम कंजर्व है. इसको हम कैसे दिखाएंगे? बाद में हम जब कंजर्वेशन लॉ पढ़ेंगे तो देयर इज सर्टेन कंडीशन अंडर विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड. बट एट दिस स्टेज आई एम टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेस्ड अपॉन masses as well as on velocity.
Suppose this is a mass. This is a mass m1 moving with velocity. This is a mass m2, and the condition is that m1 is equal to m2. Both are of the same masses. It is moving with some velocity v1. It is moving with some velocity v2. So what is the condition? Yeah, what is the conservation of momentum? The both masses will come close and naturally they will collide. And after collision, suppose they repel, then what will happen? It will go in this direction and this will go in opposite direction क्योंकि repulsion है. But conservation, momentum will be conserved because mass is same, and if mass is same, whatever be the velocity of the first object will remain the same, or what will happen? Either it will transfer some momentum to the second particle, or the second particle will transfer some momentum to the first particle, but finally m1 into velocity of particle m1 is equal to m2, the velocity of the particle of mass m2. This is the conservation. If it happens, this is the conservation. Secondly, I told you that conservation is transferred in each and every direction. If I am talking about the two-dimensional motion, suppose this is some object of mass m1 and this is an object, say, of mass m2, and this particle is moving. This is moving, and at some stage it comes to mass m2. m2 mass may be at rest or m2 mass may be in motion. Then what will happen after collision? This particle may move to this direction and this particle may move to this direction. Naturally there was momentum before the collision of this particle. अगर ये रेस्ट पर है तो ये तो इसका तो मोमेंटम जीरो हो गया, हम मान लेते हैं ये रेस्ट पर है, और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी कोई वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी है v1, तो जो मोमेंटम हुआ वो हुआ m1 v1. इट इज बिफोर कोलिजन, जब हम ये मान रहे हैं कि दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है. अब ये टकराया, इससे कोलाइड हुआ. कोलाइड होने के बाद आप ये देख रहे हो कि ये ऐसे चला गया, तिरछा चला गया. ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? किसने एक्स डायरेक्शन में भी मूवमेंट किया और वाई डायरेक्शन में भी मूवमेंट किया. मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम मूवमेंट ऐसे ही दिखाएंगे, क्योंकि आप पोजीशन कैसे दिखाते हो? आप जितने एक्सिस होते हैं उनके थ्रू वॉक करते हो. तो आपने एक्स एक्सिस के थ्रू वॉक किया, वाई एक्सिस के थ्रू वॉक किया. इसी तरह से जो m2 है ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा. ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बराबर बराबर ही जाएंगे. अब आप देखो, एक कंडीशन होती है मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है एक्स डायरेक्शन में भी और मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है वाई डायरेक्शन में भी. सो दिस इज एन एग्जांपल दैट मोमेंटम ट्रांसफर्स इन more than one direction. Don't say that it will transfer in each and every direction, but you say that momentum transfers in more than one direction. अब यहाँ पर क्या होगा कि मोमेंटम जो y डायरेक्शन में, आप देख रहे हो y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा वो ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, और मोमेंटम का जब आप सम करेंगे दैट विल बी जीरो, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू शो यू द कंजर्वेशन. तो y डायरेक्शन में तो जीरो हो जाएगा जब आप दोनों को ऐड करोगे, लेकिन जब x डायरेक्शन में आप ऐड करोगे तो एक पार्टिकल है m1, उसकी कुछ वेलोसिटी है ऑफ m1, और एक पार्टिकल है m2 मास का जिसकी कुछ वेलोसिटी है m2. ये कैसी होगी x डायरेक्शन में? दिस विल बी इक्वल टू m1 v1. दिस इज द कंजर्वेशन. किसी को कोई अभी तक डाउट हो तो वो ऑन करे माइक और बताए. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये हमने कंजर्वेशन दिखाने की कोशिश की कि हम कैसे कहते हैं कि मोमेंटम कंजर्व होता है. और इसी तरह से जो प्लैनेट्स हैं हमारे, वो प्लैनेट्स इसीलिए एक रूल के तहत एक ऑर्बिट क्रिएट करते हैं और उनका ऑर्बिट फिक्स होता है. मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट
करेंगे वो जो प्लैनेट्स हैं उनका जो मूवमेंट है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन लॉज। अगर वहाँ कंजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा तो वो कोलाइड कर जाएंगे, या कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है, या कोई भी उस तरह का बिहेवियर नहीं होगा जो आज हम प्रेडिक्ट करते हैं, आज हम बताते हैं। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन लॉ। सो द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन लॉ इज द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, movement of moon around the planets. This is all because of conservation laws. मैंने आपको पिछली बार भी बताया था थोड़ा सा कि यदि हम दो ऑब्जेक्ट की बात करें, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 2, then suppose F12 is the force which is applied by first particle on the second when it is colliding, or if it is like gravitational force or electromagnetic force, this may also work from distance, but still if F12 is the force which is applied by particle 1 or 2, then Newton's law says that F21 will be the force which is applied by particle 2 on particle 1, but both will be opposite in direction because it is the reaction force which acts in opposite direction. So F12 minus F12 is equal to minus F21. This simply means that derivative, what is force? Rate of change of momentum. So it is the momentum of first particle, and then d dt, derivative of momentum of second particle. This implies rate of change of, what is p1? This is mass of first particle multiplied by acceleration of first particle. इसको मैं इस साइड ही ला रही हूँ. Derivative of mass of second particle and acceleration of second particle is equal to 0. आप दोनों तरफ से कर सकते हो, इधर रख के भी कर सकते हो. यहाँ पर हमने लिया ये मैंने गलत कर दिया, A1 नहीं आएगा, दिस इज यस मैम, ये V होगा. हाँ V गलत कर. दिस इज M1 V1, यहीं रखते हैं इसको क्योंकि मुझे फिर बाद में एक और स्टेटमेंट देना होगा, तो उसको बचाते हैं, यहीं पर रखते हैं. नाउ दिस सिंपली मीन्स M1 A1 इज इक्वल टू माइनस M2 A2. मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, मासेस तो कांस्टेंट है. दिस सिंपली मीन्स दैट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू माइनस M2 अपॉन M1. A1 अपॉन A2 इज M2 अपॉन M1. तो यहाँ से एक रिजल्ट आया कि जब दो पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, कोलाइड करते हैं दो पार्टिकल, तो द रेशियो ऑफ देयर एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट. आप देख रहे हो, रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन हमने लिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ देयर मासेस, क्योंकि ये क्या है 1 अपॉन M1 अपॉन M2. तो कॉरस्पॉन्डिंग मास हो गया ना A1 के रिगार्डिंग M1 और A2 के रिगार्डिंग M2. सो दिस इज अ रिजल्ट, यू शुड नोट इट. आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन में इसको रखिए कि रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द टू कोलाइडिंग पार्टिकल इज अ कांस्टेंट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग masses. Okay, now in general what is the rate of change of momentum? It is equal to force. आप लोग को दिख रहा है स्लाइड? यस मैम. ओके, शुड आई चेंज द स्लाइड और ठीक है, ये इधर राइट में मैं लिख रही हूँ तो मैम इट्स ओके. okay. So derivative of this is rate of change of momentum is equal to total force, or F is equal to ये मैंने गलत लिख दिया, just this is mass mv, it is m dv dt, derivative of v, that is e. So in another way you can write
F is equal to P dot. What is P? P is mv. So I have this relation, F is equal to P dot. Now suppose I say F is 0. When does it happen? F is 0. F means the forces are either in equilibrium or there is no force. Then what happens? Then P dot is equal to 0 or P is equal to constant. So you see, here you are getting that rate of change of momentum is 0. It simply means there is no change in momentum under the condition that F is equal to 0. F happens to be 0 if either there is no force or if forces are in equilibrium, because if the forces are in equilibrium then always the sum of the forces is 0. अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, हमने ये यहाँ पे प्रूव कर दिया कि if forces are 0 or if F is equal to 0, don't say if the forces are 0, if F is equal to 0 then momentum is conserved. P constant आ गया यहाँ पे, तो हमारा ये रिजल्ट आ चुका है यहाँ पे कि if total force, इसीलिए वर्ड के लिए लिखा जाता है total force. अब मैं कह सकती हूँ if total force acting on a particle, because I am talking about a single particle, acting on a particle is 0, then the linear momentum, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि जो मैंने डेफिनेशन यूज किया that is the definition of linear momentum. ये जो v velocity है, this is causing a linear motion. The linear momentum is conserved. ये हम सारा जितना भी बात कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हैं. अब यहाँ पर हम एक चीज और देखेंगे, ये एक रिजल्ट आ गया हमारा, फर्स्ट कंजर्वेशन लॉ प्रूव हो गया कि लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होगा. बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये जो वेलोसिटी है दिस इज प्रोड्यूसिंग द लीनियर मोशन. दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन, दिस इज प्रोड्यूसिंग द लीनियर मोशन. There is no rotational effect due to this velocity. So this result is applicable for the linear momentum. Now take another situation. Suppose S is a direction of a surface, or you can say a line. Then F dot S is equal to 0. Suppose it happens that F dot S is 0. What does it mean? कब होता है F dot S 0? When F is perpendicular to S. इससे क्या मतलब हुआ? ये जो S की डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं, फोर्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है. This implies there exists no force or the sum of forces along S. Suppose it happens, okay, no force along S. Now what happens about P dot S? P dot means derivative. P dot S is equal to, what is P dot? P dot is F by 1. P dot S. एक ये बहुत ध्यान रखना आप कि जो बीच में मैं डॉट लगाती हूँ, ये क्रॉस लगाती हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. आप जब तक, जैसे मैंने ये S लिखा, S का मतलब ये डायरेक्शन के साथ मुझे बता रहा है. यदि मैं किसी सरफेस की बात कर रही हूँ या लाइन की बात कर रही हूँ तो इट इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग द डायरेक्शन. और अगर मैं डॉट नहीं लगाती, सिंपल एस लगाती, तो ये एक लाइन एलिमेंट को बताता विदाउट डायरेक्शन. तो ये ध्यान रखिएगा. P डॉट S इज इक्वल टू F डॉट S. एंड व्हाट इज F डॉट S? F डॉट S is 0. So it is 0. What is this P dot S? It is the rate of change of momentum in the direction of S. क्योंकि आपने S को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आ रहा है 0. इसका मतलब क्या हो गया कि यदि forces are perpendicular to a line element, then in that case there is no rate of change of momentum along the line, along that element. If
the forces are perpendicular to a surface, if the forces are perpendicular to a line, there is no rate of change of momentum along that line. ठीक है? So no change in momentum in the direction where there is no force. This is another result. मैंने आपको बताया था कि हम हर चीज को कनेक्ट करते हुए चलेंगे. आप इन सारे रिजल्ट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो. तो इससे क्या पता चला कि या तो फोर्स ना हो, either F is 0 or force is not in that direction, force is perpendicular to S, then your momentum is conserved. So ये छोटे छोटे 2-3 रिजल्ट्स हैं यहाँ पर, जैसे एक ये वाला रिजल्ट था, एक यहाँ पर रिजल्ट आया और एक यहाँ पर रिजल्ट आया. इनको आप अपनी तरीके से डिस्क्राइब करना. Then we come to angular momentum. आप लोगों में से किसी ने यूजीन की वो देखी थी जो मैंने कहा था, वीडियो कहा था ना देखना यूट्यूब पे? नो मैम. अच्छा, तो 4 दिन से तो मैंने क्लास नहीं ली, 3 दिन से फिर भी नहीं देखी तुम लोगों ने, तो देखो उसको, बहुत अच्छी है. अभी आप लेक्चर के बाद टाइम निकाल के देखना तो आपको और ज़्यादा से क्लियर हुआ जो मैंने थोड़ा सा कंजर्वेशन की बातें की. ठीक है? अच्छा, अब अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो पहले हम इसको थोड़ा सा फिजिकली समझेंगे. आप में से किसी को भी अगर थोड़ा आइडिया हो एंगुलर मोमेंटम के बारे में? मैंने मोमेंटम के बारे में बताया दैट इट इज अ पावर. एंगुलर मोमेंटम को पिक्चराइज करने के लिए या एंगुलर मोमेंट का कंसेप्ट देने के लिए मैं थोड़ा सा इसे पिक्चराइज करने की कोशिश करूंगी. आप में से किसी को भी आता हो तो थोड़ा सा मुझे बताने की कोशिश करो, या नो मैम बोल दो बस. नो मैम. अनम्यूट करो भाई. नो अच्छा चलिए मैं बताती हूँ. नो मैम. थोड़ा सा बेटा ये ध्यान रखना, अब जितनी आप फिजिक्स मैंने पढ़ोगे, मैकेनिक्स पढ़ोगे और अगले सेमेस्टर में फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ोगे, उसको जितना विजुअलाइज करोगे, जितना प्रैक्टिकल से जोड़ोगे, उतना तुम्हें मजा आएगा. और यदि आप उसको रटने की कोशिश करोगे तो मजा नहीं आएगा. अभी तक जितना तुम लोग बार बार बता रहे हो ना नो मैम नो मैम, इट सिंपली मीन्स कि पूरी फिजिक्स पढ़ के आए हो पर रट के आए हो. और अगर उसे विजुअलाइज करते तो तुम और अच्छा कर सकते थे. तो अभी कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा विजुअलाइज करो हर चीज को. मैंने आपको बताया था मोमेंटम इज द स्ट्रेंथ, मोमेंटम इज द पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट which it can impress on some another object to which it is going to collide. ये एक जनरल सी डेफिनेशन है. अब मैं बात कर रही हूँ एंगुलर मोमेंटम की. जब मैंने एंगुलर वर्ड यूज किया तो इट सिंपली मीन्स दैट योर ऑब्जेक्ट इज आइदर ऑर्बिटिंग और रोटेटिंग. कहीं ना कहीं वो किसी चीज के अराउंड रोटेट कर रहा है, या फिर वो अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, या रिवॉल्व कर रहा है, या रोटेट कर रहा है. तो क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो अब लीनियर नहीं है. he was producing the motion in a line. Here your velocity is something which is producing a curve. अब वो जो पार्टिकल है वो कर्व में मूव कर रहा है. तो मैं हल्का सा आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि इसको हम कैसे मैथमेटिकली या पिक्चर फॉर्म में कैसे सोच सकते हैं. आप ऐसे देखो कि एक ये आपका एक ऑब्जेक्ट है. Suppose this is an object A having some mass and this is some point B. ठीक है? मैं B पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये देखना चाहती हूँ कि एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन करें. सो यू जस्ट जॉइन B to A. इससे बहुत ही गंदी लाइन आती है, टेढ़ी मेढ़ी. Join B to A, and then suppose corresponding to B, its position vector is R. ठीक है? इसका पोजीशन वेक्टर R है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो R. Now this particle is
will produce the angular momentum. That simply means that it will either rotate or revolve. तो मैं इसको एक लिमिटिंग पोजीशन में बात कर रही हूँ कि ये मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, थोड़ा सा कर्व क्रिएट करेगा. मैं इसे मान रही हूँ कि वो कर्व के फॉर्म में नहीं है, उसको मैंने लिमिटिंग पोजीशन में लिया, यानी कि एक इतना हिस्सा लिया कि वो लाइन जैसा ही इफेक्ट दे रहा है. तो एट अ टाइम सपोज इट इज एट दिस पॉइंट, जो mv है वो क्या दिखाता है? लीनियर मोमेंटम. और इसकी डायरेक्शन भी यही होती है, ध्यान रखना. जो लीनियर मोमेंटम होता है उसकी डायरेक्शन भी अलोंग द मोशन होती है. जैसे आपका एक बॉल है, वो ऐसे अगर मूव कर रहा है तो उसके मोमेंटम की भी यही डायरेक्शन होगी. ठीक है, क्योंकि आप कैसे कह रहे हो? mv कह रहे हो ना, तो दिस इज पैरेलल टू v. v वेक्टर है, v वेक्टर इज टेलिंग यू अबाउट द डायरेक्शन. तो जिस डायरेक्शन में आप वेलोसिटी को बना रहे हो, mc केवल मल्टीप्लाई किया आपने, m इज अ कांस्टेंट, तो mv क्या दे रहा है? सम वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू v. So it is simply showing that the direction of linear momentum is along the velocity. ये बहुत important point है कि direction of linear momentum is along the velocity. यहाँ पर जहाँ हम अभी बात करेंगे, यहाँ angular motion हो रहा है, rotation या revolution हो रहा है. फिर भी मैंने लिमिटिंग पोजीशन में ये कहा कि जब ये मूव कर रहा है, क्योंकि मुझे इसे पिक्चराइज करना है व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, तो मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट किया mv से. mv क्या है? लीनियर मोमेंटम है. अब आपने किसी एक टाइम पे बात की कि t टाइम पर वो पार्टिकल जहां भी आएगा, अभी हम ये कह रहे हैं कि b से जब हमने ज्वाइन किया एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड t इज द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप क्या करें? इसको कंप्लीट कर लें पैरेललोग्राम. ठीक है, इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के बाद यदि मैं मैथमेटिकली कहूं कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, देन एंगुलर मोमेंटम इज सिंपली द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम. आप स्ट्रेंथ की बात करते हो ना, तो एंगुलर मोमेंटम में उस स्ट्रेंथ को हम एरिया से दिखाते हैं. एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज r क्रॉस mv. ये मैंने बात की रिगार्डिंग द एरिया. जब मैं मोमेंटम को कहती हूँ तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसका मतलब मुझे उसकी कोई डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, और जब मैं डायरेक्शन दूंगी इसकी, तो वो कुल मिलाकर के एक वेक्टर प्रोड्यूस होगा एंड दैट वेक्टर विल बी एंगुलर मोमेंटम. अब आप अगर ये जो मैंने यूजीन का आपको बताया था वीडियो, उसको देखेंगे. मैं वैसे कोशिश करूंगी अगली बार से मैं यहीं पर उसका लिंक दूं. अभी फिलहाल मैंने लिंक नहीं दिया है. तो वहां पर बहुत अच्छे से ये बताया गया है कि होगा क्या कि जब ये पार्टिकल मूव करेगा, सपोज ये पार्टिकल यहाँ पे इस टाइम पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जर्व कर रहे हो, तो नेचुरली इस पार्टिकल की कुछ पोजीशन आ जाएगी. सपोज ये इस वाली पोजीशन पर आ गया, तो वो ये कहते हैं कि इसको मिलाया आपने, ये r है, और r के बाद फिर से पैरेललोग्राम पूरा करो जहां पर भी वो है. पार्टिकल यहाँ पर है ना, ये तो सीधा बन गया, सीधा नहीं बना, उसको थोड़ा सा टेढ़ा बना लो. सपोज यहाँ पर आ गया, चलो सीधा ले लेते हैं. तो वो ये कहते हैं अगर वो पार्टिकल यहाँ आ गया तो फिर आप ऐसे करके, और यहाँ आपका टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप इसके हिसाब से पैरेललोग्राम पूरा करो. अब वो पार्टिकल कहीं और आ गया, यहाँ पर आ गया, आप इसको मिलाइए और फिर दोबारा से इस पैरेललोग्राम को पूरा करिए. तो वो ये बताते हैं कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा दैट विल रिमेन कंजर्व्ड. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि कंजर्वेशन है. कंजर्वेशन को दिखाने के लिए दिखाया कैसे कि जितने भी एरियाज, जितने भी पैरेललोग्राम डिस्क्राइब होंगे, बनेंगे, उन पैरेललोग्राम्स का एरिया सेम आएगा. दिस इज द कंजर्वेशन. ठीक है, तो एक ऐसा पैरेललोग्राम which is containing, और एक ऐसा plane which is containing r as well as mv will provide you a parallelogram, and the area of that parallelogram will be the strength of angular momentum that will remain conserved as the particle will move. यहाँ पे तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो सीधा मोशन ले रही हूँ, मैंने सीधा लिया ना, ये देखिए ऐसे आ रहा है. Actually this is the approximation.
जब वो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो किसी एंगल से, माने किसी कर्व में ही मूव कर रहा है, लेकिन इन द लिमिटिंग पोजीशन वी आर एज्यूमिंग दैट दैट कर्व मे बी अप्रोक्सीमेटेड बाय अ लाइन, क्योंकि हमें वहां पर v का रोल भी लेना है, वेलोसिटी का रोल भी लेना है। यहाँ पर हमने बात कर दी मैग्नीट्यूड की, अब हमें बात करनी है डायरेक्शन। मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ, एक बी पॉइंट है, एक सेकेंड, ये एक बी पॉइंट है और यहाँ पर आपका सपोज पार्टिकल है ए, मैंने इसको ज्वाइन किया और मैंने कहा कि एम वी मोमेंटम है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं टू कंप्लीट अ पैरेललोग्राम and the area of this parallelogram will be the strength of angular momentum. Now what is the direction of this angular momentum? मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर मोमेंटम होता है जैसे mv, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल लाइन ऑफ एक्शन ही होती है, जिस तरफ पार्टिकल जाएगा उसी तरफ उसका मोमेंटम जाएगा। ये जरूर है कि ये जो आपने टू डायमेंशनल मोशन में देखा, हमने ये कहा था कि मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड इन मोर देन वन डायरेक्शन, तो ट्रांसफर होने के बाद जिस डायरेक्शन में भी वो मूव करेगा उसी डायरेक्शन के हिसाब से मोमेंटम भी डायरेक्शन लेता रहेगा। अब इसकी जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की, तो इसकी डायरेक्शन ये होती है कि ये एक पैरेललोग्राम है, एक प्लेन में है ये पैरेललोग्राम, तो वन वेक्टर which is perpendicular to a plane containing r as well as mv, ये एक डायरेक्शन आ गई। तो ये जो होती है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर। मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हाँ मैम स्लाइड नहीं दिख रही है मैम। हाँ बेटा, स्लाइड नहीं दिख रही है मैम। किसी को भी मैम मुझे तो नहीं और दिख लोग रही है। बताओ। नहीं मैम, हमें तो और दिख लोग रही है। बताओ। दिख रही है। मैम दिख रही है। तो बेटा आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, फिर आपके बेटा नेटवर्क। अब मैम नहीं दिख रही है अभी। आप लोग म्यूट करो। चलिए, तो हमने स्ट्रेंथ की बात कर दी। स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द पैरेललोग्राम which is constructed with the help of r as well as with the help of mv at some point of instant. Okay, now the direction will be perpendicular to the plane containing that parallelogram. तो अगर आप इसे देखो, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल होगा, r और mv के बीच में, ठीक है। तो मैं अब कैसे डिफाइन कर सकती हूँ एंगुलर मोमेंटम को, L इज इक्वल टू R क्रॉस mv, ठीक है। एक डायरेक्शन इन्वॉल्व है इसमें, R क्रॉस mv से आ जाएगी जो, और मोमेंटम इन्वॉल्व है। L को हम कहेंगे दिस इज एंगुलर मोमेंटम, ये इसका नोटेशन है स्टैंडर्ड एंगुलर मोमेंटम। अब मैं आपको एक जनरल वे में बताती हूँ कि मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम ये कैसे कहते हैं कि ये कंजर्व्ड है। देखो, सपोज आपके पास एक पार्टिकल है ऑफ मास m1 एंड देयर इज अनदर पार्टिकल ऑफ मास m2। आप इनका एंगुलर मोमेंटम किसी b पॉइंट, ये a1 ले लो और ये a2 ले लो, किसी b पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हो, तो हमने क्या कहा था, इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। ठीक से ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि हमें इसे अभी समझाना है कि कंजर्वेशन क्या होता है, तो मैं इसको बिल्कुल सिमेट्रिकल सा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी तो हम फिर कंडीशन देखेंगे कि अंडर व्हाट कंडीशन दिस विल बी ट्रू। ये m2 है। अब देखिए,
ये जो पार्टिकल है m1, ये माना ये पार्टिकल माना आपका मूव कर रहा है ऐसे, तो इसकी अपनी कोई वेलोसिटी होगी। इसका लीनियर मोमेंटम की मैं अगर बात करूं तो दैट विल बी m1v1। अभी मैं खाली इसी की बात कर रही हूँ। अगर मैंने इसे लिया m1v1, अप्रोक्सीमेशन है ये, तो मैं यहाँ से और यहाँ से एक ऐसे पैरेललोग्राम को पूरा करूँगी। ठीक है, ये इसकी स्ट्रेंथ हो गई ना। ये है R1 और ये है R2। तो ये जो पैरेललोग्राम बना है, ये जो पैरेललोग्राम बना है, दिस इज गिविंग यू द स्ट्रेंथ। ये जो पार्टिकल है ये ऐसे आया, ऐसे आने पर अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करूं, देन दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस दिस इज द स्ट्रेंथ रिगार्डिंग द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2। ये हो गया m2v2। ये तो स्ट्रेंथ की बातें हो गई, यानी कि हमने फिजिकली एंगुलर मोमेंटम को कैसे बताया। अब क्या हुआ कि ये पार्टिकल यहाँ पर आए, ये मूव किया इन्होंने और यहाँ पर ये कोलाइड कर गए। दोनों पार्टिकल यहाँ पे टकराए, टकराने के बाद ये पार्टिकल इधर चला गया, रिपेल हो गए, और ये पार्टिकल इधर चला गया। अब क्या होगा, बी के अलोंग जब आप फिर से एंगुलर मोमेंटम जानने की कोशिश करोगे तो दैट एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। पहले क्या था, पहले था m1v1 प्लस m2v2 R1 क्रॉस m1v1 और दूसरा था R2 क्रॉस m2v2। तो जब ये रिपेल करेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो जो पहले था वही एंगुलर मोमेंटम आएगा। दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन। इसी तरह से, और यहाँ पर अब इनका एक्सिस क्या होगा, मतलब कि डायरेक्शन क्या होगी। आप ये देखिए कि ये जो पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, पहले शुरू में ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक पैरेललोग्राम बना है। तो नेचुरली इस पैरेललोग्राम पर जो भी राइट 90 डिग्री पर जो भी एक लाइन जाएगी वो इसका हो जाएगा डायरेक्शन। इसी तरह से ये जो दूसरा वाला है, मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही खींच रही हूँ, ऐसे। ये जो होंगी ये एक के लिए डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगी और ये दूसरे के लिए डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगी। ये डायरेक्शंस हो गई, ये इनका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, और दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलाकर के बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम। एंड दिस एंगुलर मोमेंटम will remain conserved before the collision and after the collision and after the collision। ये इसका कंजर्वेशन है, हम कंजर्वेशन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट अगर दोनों के एंगुलर मोमेंटम समान है, इसका और इसका दोनों सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दोनों को यदि मैं ऐड करूंगी तो क्या आएगा, 0। आफ्टर कोलिजन भी ये क्या आना चाहिए, 0। Then you will say that it is conserved। तो यूनिवर्स में जो मोशन होते रहते हैं, उस यूनिवर्स में जो लीनियर मोशन होते रहते हैं, जो एंगुलर मोशंस होते रहते हैं, वहाँ पर ये लॉज एप्लीकेबल होते हैं। और इसी वजह से जहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है वहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पाथ को इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरा अब अपने आप सर्च करिएगा कि यदि वो सेम डायरेक्शन में कोलिजन के बाद सेम डायरेक्शन में जाने लगते हैं, सेम डायरेक्शन में रोटेट करने लगते हैं, तो उस केस में कैसे कंजर्व होता है मोमेंटम, वो आप अपने आप देख सकते हो। इसमें आप ये देखो कि जो एक झूला होता है ना, आपने देखा होगा कि जिसमें घोड़े जैसे से लकड़ी के घोड़े लगे रहते हैं, और वो झूला जब मूव करता है तो उसमें आप ये इमेजिन करें कि एक दूसरे से टकराएगा और दोनों फिर भी एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। उस वाले केस में हम कंजर्वेशन को कैसे दिखाएंगे, आप इसको अपने आप विजुअलाइज करने की कोशिश करें। नाउ आई कम टू मैथमेटिकल पार्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
first of all I'll define it. Angular momentum. अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करना है तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी को पहले डिफाइन करना होगा, ठीक है। आप लीनियर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? आप लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको आप लिख सकते हो ds dt, या आप लिख सकते हो इफ डेल्टा s इज द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल्टा t देन इट विल गिव यू द वेलोसिटी। बिल्कुल इसी तरह से जब हम लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, दिस इज एंगुलर displacement in a unit time। तो आप इसे उसी टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसको यहाँ से देखिए आप, suppose your object is at this point a1 and in the time interval delta t, time interval हमने ले लिया delta t, in this time interval this particle reaches to a2 and it describes some angle, let this angle be delta theta, then this is the angular displacement, delta theta is angular displacement, यानी कि amount of angle to which it moves। तो what is angular velocity? Delta theta upon delta t, and this delta t tends to 0 and be denoted by omega. It is the notation for angular velocity. So we have defined the angular velocity. Okay. Now what is the relation between linear velocity and angular velocity? ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है। अगर सपोज कोई हमारे लेक्चर को सुनने लगे जो कि एमएससी को पढ़ाता होगा, तो वो ये सोचेगा कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है, ये सब तो बहुत ही बेसिक है, ये सब तो बच्चे 9th-10th में पढ़ते हैं। लेकिन होता क्या है, जब आप मैथमेटिक्स लगाने वाले हैं आपको डीपली ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस रिलेशन पर कैसे पहुँचे, वरना मैं सीधा सीधा आपको डेफिनेशन बताती, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इट इज कॉल्ड द डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0। एक मैथमेटिशियन होता है, उसकी यही खास बात होती है कि जो फिजिसिस्ट है, जो केमिस्ट है, वो उस मैथमेटिक्स को उठाएगा और केवल यूज करेगा। आप नहीं करोगे ये काम, आप डिराइव कर रहे हो, आप उसकी थ्योरी बता रहे हो। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे करके पहुँचे इस तक। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल, लेकिन फिर भी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कितने लोगों को पता है ऐसे, तो मेरे ख्याल से कुछ को याद नहीं होगा, अगर पता भी है तो, और ऑलमोस्ट को याद ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा। तो इसलिए आप विजुअलाइज जरूर करिए मैथमेटिक्स को, चाहे आप रियल एनालिसिस पढ़ो, आप फंक्शनल पढ़ो, आप अप्लाइड का कोई सा भी पार्ट पढ़ो, उसको विजुअलाइज ज़रूर करो कि हम कैसे उसको इमेजिन करके प्रैक्टिकल से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिलेशन बता रहे हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का। v को हमने डिफाइन किया डेल्टा r ले लेते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा t व्हेन डेल्टा t टेंड्स टू 0, दिस इज लीनियर वेलोसिटी एंड दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। नाउ ये जो डेल्टा थीटा है, इसको आप कह सकते हो, इसको भी हम रिलेट करेंगे बाय द सर्कमफ्रेंशियल लेंथ। दिस इज द सर्कमफ्रेंशियल लेंथ
और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल, और ये है एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल। तो एक चीज़ यहाँ पे ये भी समझनी आपके लिए ज़रूरी है कि जो एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है वो दो तरह के मोशन में प्रोड्यूस होता है। एक तब प्रोड्यूस होता है जब पार्टिकल अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, दैट इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, राइट। जैसे अर्थ अपने एंगल के अबाउट, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो वहाँ पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। अभी मैं एक डायग्राम से आपको बताऊंगी कि हम दोनों को मैथमेटिकली कैसे डेराइव करते हैं। दूसरा एंगुलर मोमेंटम तब प्रोड्यूस होता है जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। जैसे मैंने आपको झूले का एग्जांपल दिया, उस झूले में जो वो घोड़ा होता है या जो भी वो सीट होती है, वो सीट पर जब बैठते हैं आप, तो जो जब आप मूव करते हैं, आपका रोटेशन जो होता है या रिवॉल्यूशन होता है, वो बेसिकली वो किसी एक्सिस के अबाउट होता है। इसी तरह से अर्थ सन के अराउंड जो मूवमेंट करती है, वो भी एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस करता है, एंड दैट एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। तो दो तरीके का एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। एक मोमेंटम होता है जिसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, और दूसरे को हम दूसरे को हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एक स्पिन और एक ऑर्बिटल, दोनों में ही थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है एक्सप्रेशन। जैसे हम, आप लोग ये बताइए, राहुल सर की क्लास है क्या? Yes, नो ma'am. मैम, मंडे में बोला था लेने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो आई एम कंटिन्यू ना। अभी तुम लोग को बोर तो नहीं हो गया, ज्यादा तो नहीं हो गया? समझ आ रहा है मतलब? अच्छा चलिए, इसको हम थोड़ा सा करके समअप करेंगे, हालांकि लंबा है ये काफी। एक कंसेप्ट देके समअप करेंगे, जिससे जब हम अगली बार बताएंगे तो आप फिर से उसको देख पाए। देखिए, आपका एक है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। मैंने आपको पहले बताया था ना, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, यानी कि जहां से आप, दिस इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस बी, जिसके अराउंड आप मोमेंटम की बातें कर रहे हो। दूसरा, आपका एक पार्टिकल किसी पॉइंट पर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमने कहा था इसको मिला दीजिए, हमने मिला दिया पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, और इसको नाम दे दिया R, प्रोवाइडिंग द पोजीशन। ठीक, ये जो पार्टिकल है, हम इसको मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म में ले रहे हैं, यानी कि जब आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम लाना होता है वो आसान होता है, जब आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लाना होता है वो जनरलाइज्ड है। तो मैंने एक एक्सिस बनाया, दिस इज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यू कैन से इट इज द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ये जो पार्टिकल है, ये इसके अराउंड मूव करेगा। ये जो पार्टिकल है, ये देख रहे हो ना पार्टिकल, ये ऐसे करके इस तरह से रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक इसका पाथ बना लेते हैं। इसको ना मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स की वजह से थोड़ा सा बेकार सा बनाऊंगी। एक मिनट, मैं जरा सा पार्टिकल यहाँ पे बना रही हूँ, वरना थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये मेरा पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये इसका मोशन हो रहा है, और ये इसकी एक दूसरी पोजीशन है, ये भी। यहाँ पर ये एंगल डिस्क्राइब कर रहा है थीटा। ठीक, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से आपने इसे मिलाया, एंड लेट दिस इज रेडियस एंड विच इज आर। तो नेचुरली ये भी क्या होगी,
ये भी आर होगी, रेडियस है ये, क्योंकि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, दिस एंगल विल बी डेल्टा थीटा, जो मैंने यहाँ बताया था, यहाँ पे बताया था डेल्टा थीटा, ये वाला, तो दिस इज डेल्टा थीटा। एक्चुअल में ये इन यहाँ पे जो ये एंगल दिख रहा है दोनों के बीच में, ये इसी को रिफ्लेक्ट करेगा, डेल्टा थीटा। अब इसका मोशन ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, माने ये ए है माना ऑब्जेक्ट की फर्स्ट पोजीशन, and this is A2. Then this A1 A2 R A1 A2 is delta R. इसको मैंने डेल्टा R मान लिया। जो सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है, तो इस डेल्टा R का क्या रिलेशन बनेगा? दिस इज R डेल्टा थीटा। यही होता है ना, R रेडियस है, ये डेल्टा थीटा है, तो ये कितना आ गया? डेल्टा R डेल्टा थीटा। R डेल्टा थीटा में ये जो R है, आप ये बता सकते हो कि ये एंगल क्या होगा? व्हाट इज दिस एंगल? कोई बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एंगल कितना होगा। इसे मैं बी डैश कर देती हूँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो प्लेन है, प्लेन ऑफ रोटेशन, दिस इज द प्लेन ऑफ रोटेशन, दिस इज द प्लेन ऑफ रोटेशन, ये प्लेन ऑफ रोटेशन बी डैश से क्या एंगल बना रहा है? आप इमेजिन करो, कोई चीज रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, उसके बीच से, सेंटर से एक लाइन जा रही है, तो अगर उसने एक सर्किल जैसा डिस्क्राइब किया, प्लेन ऑफ सर्किल, तो वो उस लाइन जो है, जो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, उससे कौन सा एंगल बनाएगी? आप अलग से बनाओ। ये प्लेन ऑफ रोटेशन है, यस 90 बनाएगी ना। तो 90 बनाने का क्या मतलब है? इसमें तुम कोई भी लाइन खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, हर एक के साथ इसका एंगल क्या बनेगा? दिस इज 90 डिग्री। हर एक के साथ इसका 90 बनेगा, सो दिस एंगल विल बी 90। क्लियर? नाउ व्हाट इज दिस आर? नाउ ये आर क्या होगा? आर का मतलब हो गया आर साइन थीटा, इस वाले ट्राइंगल से A1 फ्रॉम O, बल्कि लिखना चाहिए मुझे A1 OB। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना बेटा। तो राइट एंगल ट्राइंगल से एक रिलेशन आ गया कि ये जो R है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ R साइन थीटा, और साथ में क्या है? डेल्टा थीटा। नाउ व्हाट इज डेल्टा R डेल्टा T यूनिट टाइम में? इट इज R साइन थीटा डेल्टा थीटा डेल्टा T। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा थीटा डेल्टा T को ओमेगा R साइन थीटा। दिस इज डेल्टा R डेल्टा T। डेल्टा R डेल्टा T क्या है? व्हेन डेल्टा T टेंड्स टू 0, दिस रिप्रेजेंट्स V। देखिए डेल्टा R डेल्टा T को हमने डिफाइन किया है 2 में, ये V है, V इज इक्वल टू ओमेगा R साइन थीटा। अब मैं इसको वेक्टर V के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं यदि, तो वेक्टर V दिखाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? ओमेगा क्रॉस R। बताओ ये ठीक है या नहीं? जैसे ही मैं इसे वेक्टर के फॉर्म में दिखाऊंगी, जैसे मैंने ये लिखा V, तो यहाँ पर मुझे डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी। ये ईटा है यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के V वेक्टर कितने के बराबर आ गया? ओमेगा क्रॉस R के बराबर। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर? ये कब आ रहा है? जब मैंने ये कहा कि ये जो पार्टिकल है आपका, ये ऐसे 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 करके रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है बेसिकली। अब अगर मैं ये कहूँ
मैंने इसे यहाँ से शुरू किया था, इसको मैं 3 नंबर देती हूँ और इसको कर देते हैं 4। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट देखो, सपोज जो तुम्हारा पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है ए पार्टिकल, ये अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लग जाए, ऐसे नहीं जा रहा जैसे मैंने बताया है, तो आप इसे बहुत आसानी से इमेजिन कर सकते हो। आप ये इमेजिन करो कि ये जो बी है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये ओ पे आ गया पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये पूरा आपका पार्टिकल बन गया। उस केस में तुम्हारा जो कैपिटल आर होगा वो बता सकते हो क्या होगा? ये मैं लिख रही हूँ फॉर स्पिन। कैपिटल आर कितना हो जाएगा? कैन एनीबडी ऑफ यू? बताओ। नहीं बता पा रहे हो कोई भी? बेटा ये आर हो जाएगा, आर। आप देख लो, आप पॉइंट को ले जाओ धीरे धीरे बी को ओ पर, बी को जब ओ पर ले जाओगे, बाद में इसे दोबारा देखना, जब आप बी को ओ पर ले जाओगे योर आर विल कोइंसाइड विद कैपिटल आर, क्योंकि आपका ये है ना पार्टिकल, तो पार्टिकल अपने ही अबाउट, पार्टिकल तो ये है ना बेटा, पार्टिकल तो ये है ना, ये अपने ही अबाउट रोटेट कर रहा है अब, ठीक है। तो ये जो कैपिटल आर है ये आर के बराबर हो जाएगा। और ऐसा होते ही जो हम डेल्टा आर को डिफाइन करते हैं, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, ये क्या बन जाएगा? डेल्टा आर इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, डेल्टा आर delta t will be r delta theta delta t is equal to r and this is omega। तो रिलेशन क्या बना उस केस में? रिलेशन आया v is equal to r, ये r वही रेडियस है, तो मैं इसको वापस से स्मॉल r लिख सकती हूँ, मैंने एक्चुअली ये गलत लिख दिया, ये कैपिटल R है, r को रिप्लेस किया हमने स्मॉल r से, फिर ये स्मॉल r है और ये स्मॉल r है, ठीक है। तो रिलेशन क्या आया? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, दिस इज फिफ्थ। अब आप देखिए ये वाला रिलेशन और ये वाला, नेचुरली यहाँ वेक्टर लगाएंगे, ये है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r व्हेन your particle is rotating about some other axis other than its own axis, and this is the relation between angular velocity and linear velocity when particle is rotating about its own axis। ठीक, तो इसको हम दूसरी तरह से कैसे बोलते हैं? हम ये कहते हैं कि ये जरूरी नहीं होता कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो पार्टिकल से पास करे। देखो ये एक पार्टिकल है, यहाँ से पास कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पास कर रहा है ना, तो ये तो हो गया स्पिन, ये हो गई ये वाली सिचुएशन। और जब वो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास नहीं कर रहा, पार्टिकल तो यहाँ पर है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो पार्टिकल इसके अराउंड जाएगा, वो हो गई ये वाली सिचुएशन। तो अभी हमने केवल एक चीज बताई, रिलेशन, दिस इज द रिलेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं इसको अगले लेक्चर में, आज हमारी 11 बजे 11:30 है वैसे तो मीटिंग, और मुझे उसके लिए यूनिवर्सिटी जाना है, तो मैं इसको अब बाद में कल कंटिन्यू करूँगी, कल या परसों मैं बता दूंगी, मे बी आई मे टेक क्लास ऑन संडे ऑल्सो, क्योंकि मेरी क्लासेस मिस हो गई हैं। अब हम यहाँ से पहुँचेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तब तक आप इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे ही तीनों कंजर्वेशन लॉज खत्म होंगे, हम 1 से 2 क्लासेस केवल ओरल डिस्कशन के लिए लेंगे, जिसमें आप में से एक स्टूडेंट बताता जाएगा उसने क्या शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं। वो स्टूडेंट जैसे 4 या 5 क्वेश्चन बता देता है, या जैसा भी मुझे महसूस होगा, उसके बाद मैं दूसरे किसी भी आप में से किसी भी स्टूडेंट के पास ऑन कर दूंगी कि अब आगे आप बताओ, या पीछे कोई छूट गया है तो आप बताओ। ऑल ऑफ यू शुड have all the questions, all the possible short questions up to the lectures which will finish up to conservation laws। तो आप लोग कंजर्वेशन लॉज का जितना अब तक हो गया, या जितना भी मैंने मैकेनिक्स का अब तक बता दिया, एक स्टूडेंट है आप में से केवल, उसने मुझे
मेल पर शॉर्ट क्वेश्चन भेजे थे, तो देयर वर ओनली 2 क्वेश्चंस। आप लोग क्या करें, माइक्रोसॉफ्ट टीम पर भी आप अटैच कर सकते हैं अपनी फाइल, तो आप इसी पे अटैच करिए, जिससे एक ही जगह सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। मेल से मुझे लेना डाउनलोड करना मुश्किल हो जाएगा। आप लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बनाइए, नोट्स बनाइए। आपको ये भी पूछना हो, माना कि हमने ये ठीक बनाया है या नहीं नोट्स, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। आप फोटो खींचो, मुझे मेल कर दो, आई विल गो थ्रू इट और आपके साथ मैं डिस्कशन कर सकती हूँ। तो अभी आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन बनाने शुरू करो। जितने बनाओगे ना, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2 लॉज अभी हमारे बचे हैं, फिर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर आएंगे। तो मैं नेक्स्ट में इसे कंटिन्यू करूंगी टू टेल यू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। ओके, अब आप लोग अनम्यूट कर लो और किसी को कोई बात करनी है तो वो बताइए। किसी को कोई बात कहनी है तो अनम्यूट करो पहले आप लोग। आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रहा होगा अभी भी ना? स्क्रीन शेयर हो रहा है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। यस प्राची। आपका सब ये रिकॉर्डिंग चल रहा है अभी, तो कोई आप में से कोई स्टूडेंट कुछ कहना चाहता है, कोई बात पूछना चाहता है, तो वो बात करे मेरे से। आप अनम्यूट करके बात करो। एम आई ऑडिबल? आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। तो आप में से किसी को कोई क्वेरी हो तो वो पूछे। मैम फर्स्ट 2 लेक्चर्स के जो आप शॉर्ट लोग अपने सीनियर से क्वेश्चंस। पूछिएगा, वो लोग भी काफी शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह बीच बीच में बना चुके हैं, बनाते थे वो, टीपने के लिए नहीं, कैसे बनाना। और मैं तो ये प्रेफर करूंगी कि आप गोल्डस्टीन की किताब का पीडीएफ मैंने आपको भेजा है, आप शॉर्ट क्वेश्चन गोल्डस्टीन से ही बनाओ, वहीं से पढ़ते चले जाओ, लाइन से नोट करते चले जाओ, जो भी आपको एक क्वेश्चन लगता है। मुझे ऑप्शन नहीं चाहिए, आप आंसर वे में बना सकते हो, आपको क्वेश्चन नहीं बनाना, आपको मतलब एक स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कंसेप्ट। ठीक है, तो शुड आई स्टॉप द मीटिंग नाउ? ओके।